सभी हाथ जोड़ लीजिए, नमोकार मंत्र से फिर से चालू करते हैं। नमो अरिहंताणं सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्. Fine. So we have already studied a lot in Atma and Paramatma, and we have a full class today. So I'll just give you a very small snapshot of what we have studied in the previous class, and then we will go ahead with whatever we were doing. So it will take hardly 5 minutes. Okay. First of all, the chapter that we are studying is called as the soul and the supreme soul. This chapter is based on Acharya Yogendu Dev's two scriptures. First one is Yog Sar, and the second one is Paramatma Prakash. He was a great poet of 6th to 11th century. We actually do not know exactly when, but then it is between 6th to 11th century. And he has written his writings in Apbhransh language. There are different types of languages which are written in Devanagari Lipi, and amongst them Apbhransh is the highest, is the language in which he has written. Fine. So according to that particular language, his writings are considered very unique and spiritually blessed. बहुत सारे तरीके होते हैं, राइटर्स अपने अपने हिसाब से चूज करते हैं. उन्होंने बेसिक अपना सब्जेक्ट कंटेंट चूज किया था कि वो सिर्फ स्पिरिचुअलिज्म पर लिखेंगे, वो सिर्फ अध्यात्म पर लिखेंगे, ना वो न्याय पर लिखेंगे, ना वो ज्ञान पर लिखेंगे, ना वो मीमांसा पर लिखेंगे, ना ही उन्हें दुनिया भर के सारे पदार्थों को बताना है. उनका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है कि वो अध्यात्म बताना चाहते हैं, द स्पिरिचुअल कंटेंट. ओके. So this complete chapter is written according to 3 particular verses from Paramatma Prakash. Verse numbers are 13, 14 and 15. In the 13th verse, he has talked about Bahiratma. In the 14th one, he has talked about Antaratma. And in the 15th one, he has talked about Paramatma. So good so far? इतनी बात आपको समझ आई? सर ये क्लास कौन सी है? ये वीतराग विज्ञान. मेरा नाम संयम है. नहीं, हमें स्वप्निल जी शास्त्री ले रहे थे हमारी क्लास. मेरे ख्याल से आप फिर शायद किसी और, आप दोबारा से अपने उस पे लिंक पे चेक कीजिए. बालबोध 3 में है नाम. ओ आई एम सॉरी, आप दूसरे लिंक पे चेक कीजिए, शायद लिंक डिस्टर्ब हुआ है. हाँ, लिंक डिस्टर्ब हो गया ऐसा लग रहा है. हाँ सॉरी लिंक डिस्टर्ब हुआ है. हाँ, तो आप एक बार और चेक कीजिए ना अपने लिंक पे. दोनों लिंक चेक किया, दोनों पे नहीं आ रहा है. Oh, I'm so दो लिंक sorry. आया था हमारे व्हाट्सएप पे, दो लिंक चेक किया, दोनों पे नहीं आ रहा है. क्योंकि हमारा जूम का मीटिंग नंबर आज अलग है, कल से अलग है आज का. I guess yes, वो थोड़ा सा कल सिस्टम में चेंज हुआ था. कोई मेरी क्लास का है वैसे यहाँ जो कल भी मेरी क्लास में था? हाँ मैं हूँ. कुणाल जी हैं, स्वप्निल की क्लास का. संस्कार जी भी हैं आई गेस. मेरे ख्याल से जो यस जो क्लास मेरे ख्याल से आप दूसरी ढूंढ रहे हैं, आपको फिर से एक बार आपके आईटी डिपार्टमेंट से बात करनी पड़ेगी. आई एम सो सॉरी फॉर दैट. ये लेवल 4 वाले आ गए. लेवल 4 वाले हम लोग. हेलो हेलो. यस हाँ जी. ओके. हम लोग लेवल 4 वाले चेंज करें क्या?
I guess please आप change कर लीजिए. Thank you. And sorry. लेवल चेंज वाले जो भी है इसमें चेंज कर लोगे. कल वाली आईडी डाल के देखो एक बार. Should we continue the class, everybody else? Yes. Okay. Yes, please. Yes. Okay. We were talking about Antaratma. So Antaratma is one of the most important topics that we need to cover because it basically deals with our life and how to go ahead. So Antaratma plays a very vital role in understanding the life journey of a particular soul. So let's begin with Antaratma. I'll just give you a very small information about the PDF that we have already seen. Fine. So we have already seen Jeev, which is of two types, Bhavya and Abhavya. Bhavya is the person who can attain moksha, and Abhavya is a person who cannot attain moksha. Then we have seen who is Bhavya. So Bhavya is a person who craves and listens to the talks of the sentient soul, Shuddhatma ki baat, sunna usko bahut acha lagta hai, and who can attain liberation is Bhavya. Then what is Atma? So Atma is the sentient Jeev fundamental. Sentient matlab Gyan Swabhavi, consciousness with consciousness. Next is there are three stages of the soul: extrovert, introvert, and supreme. Extrovert is called as Bahiratma, introvert is called as Antaratma, and supreme soul is called as Paramatma. Then we have seen who is an extrovert. The person who regards one's body as his own is called as an extrovert. बहिरात्मा किसे कहते हैं? तो जो शरीर को अपना मानता है उसे बहिरात्मा कहते हैं. शरीर को, शरीर के जितने भी लोग हैं उन सभी को, उससे संबंधित जितने भी लोग हैं उनको अपना कहता है, उसे बहिरात्मा कहते हैं. और फिर उसके बाद में हमने देखा था कि who regards birth as the birth of the soul, birth of the body as birth of the soul, and death of the body as the death of the soul, he is particularly a Bahiratma. Are we fine by far? किसी को कुछ प्रॉब्लम है? कोई कुछ पूछ रहा है? नहीं. Fine. एक्सट्रोवर्ट के बारे में हमने, और ये एक छोटा सा इमेज है जिसमें बताया है बेचारा कितना दुखी होता है. यू कैन सी इन द इमेज. और नहीं तो बेचारा बस गिनता ही रहता है कि पर डे मेरी कितनी आमदनी हुई और कितना पैसा है उसका, कहीं बही खाता मिस तो नहीं हो गया है, एवरी डेज अकाउंट सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है. वो सब एक बहिरात्मा की अवस्था है. दीज आर डिफरेंट नेम्स ऑफ बहिरात्मा: डूफर्स, इग्नोरेंट, इल्यूसिव एंड रॉन्ग परसेप्टर. Then we had started talking about Antaratma, and that there are three particular things that we have understood in Antaratma. सबसे पहली चीज है जो, हाँ, सबसे पहली चीज है भेद विज्ञान. So the power of making distinction. Now you do not need to go to Himalayas to understand what is soul. You do not need to, sit very idle and, for hours and hours think about what is soul. The basic process starts from understanding the soul, understanding and utilizing it in every aspect of your life. And that can begin with the life that you are leading and living right now.
जैसे जिंदगी आप आज जी रहे हैं उसी में आप इस बात को महसूस कर सकते हैं, इस बात की समझ को डेवलप कर सकते हैं, और धीरे धीरे करके आप उसकी जो प्रोसेस में आगे आगे के स्पिरिचुअल प्रोसेसेस आएंगे उन सबको आप बहुत अच्छे से समझ सकेंगे। तो सबसे पहला जो काम है समझ लीजिए, वो अपनी लाइफ स्टाइल तो अब जब बदलेगी, जैसे बदलेगी बदलेगी, अभी जो पहला काम है वो ये समझ डेवलप करना है कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है। ये इतना सा काम यदि हम कर सके तो बहुत अच्छे से इस बात को समझना आसान हो जाएगा कि मैं कौन हूं। देखिए, यदि आत्मा की बात को समझने के लिए आपको पहले दुनिया भर की जंग जीतनी पड़े और फिर आपको आत्मा की बात पता चले, तो इसका मतलब आत्मा की बात में उतनी दम नहीं है जो आज आप अपनी लाइफ में सीख सकते हो। आत्मा की बात आप जब, जहां, जैसे, जिस परिस्थिति में है वहीं से चालू कर सकते हैं। चालू करने का मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफस्टाइल बिल्कुल जैसी की वैसी रहेगी। ग्रेजुअली उसमें चेंजेस आएंगे, ग्रेजुअली उसकी प्रोसेसेस बेहतर होंगी। वरना जैसे आपने कहानियां सुनी होंगी, आपने महाभारत की कहानी सुनी है? कोई है ऐसा जिसने महाभारत की कहानी सुनी है? हाँ हाँ सुनिए। क्या बात है, Yes. क्या बात है। तो ये जो महाभारत की कहानी हमने सुनी है, ये कहानी बेसिकली ये बताती है कि इसमें 3 लोग, मतलब वैसे तो 5 पांडव, लेकिन 3 लोग, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, ये तीनों तद्भव मोक्षगामी थे, मतलब कि सम्यक दृष्टि थे और उसी जन्म से मोक्ष जाने वाले थे। जिस समय वो युद्ध भी कर रहे थे उस समय भी वो सम्यक दृष्टि थे। आप बात समझने की कोशिश कर रहे हैं? सम्यक दृष्टि अपने आज को बदलने का नाम नहीं है। अपने आज में इस बात को स्वीकार करने का नाम है कि मैं अलग हूं और शरीर अलग है। बात आपको समझ आ रही है? अजय जी, आपको मेरी बात समझ आ रही है? शायद उनका वीडियो कुछ लॉक हो गया है। संस्कार जी, आर यू ऑन द सेम पेज वेयर आई एम ट्राइंग टू टेक यू? Yes, yes. ओह, थैंक यू। और किसी की मुझे शक्ल नहीं दिख रही है, आई एम सॉरी। आप स्क्रीन पर मुझे देख रहे हैं या ये जो हमारा पीपीटी स्लाइड है वो देख रहे हैं? Slide slide. अच्छा अच्छा, ओके, दोनों दिखाई देते हैं। हाँ ठीक है, ओके ओके, ग्रेट, फाइन। सो हमने सबसे पहले इस भेद विज्ञान को समझा है। भेद विज्ञान इज बाइफर्केशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग लाइफ। Who you are, what you are is the basic understanding of Antaratma. And as soon as we do that, we are coming towards this particular stage of Antaratma. चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। It talks about the distincts of the soul from body. The body has different other अच्छा, can somebody tell me why are we talking about body so much? हम शरीर के बारे में इतनी बात क्यों कर रहे हैं? और भी तो चीजें बहुत सारी हैं समझने के लिए, हम शरीर के ही पीछे क्यों पड़े हैं? क्योंकि हम अपने आप को शरीर से आइडेंटिफाई करते हैं। हाँ, वेरी गुड आंसर। एनीबडी एल्स? अक्षय जी? Ourselves as our bodies. ओ वंडरफुल। क्योंकि हम खुद को शरीर समझते हैं, इसीलिए। ओके, गुड। आई हैव गॉट समबडी नेम गैलेक्सी A30। आपका नाम नहीं आ रहा है, आपका नाम बताएंगे प्लीज? फाइन, मेरे ख्याल से नहीं समझ में बात बन पा रही है। ओके फाइन, फॉरगेट इट। चलिए, और फिर ये जो तीसरी चीज आपके सामने है, आपकी स्लाइड पे सबसे नीचे दिया हुआ है, द वन हु नोज, बिलीव्स एंड एक्सपीरियंसेस, मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। जो ये जानता है कि वो शुद्ध आत्मा ही मैं हूं, जो ये मानता है कि वो शुद्ध आत्मा ही मैं हूं, और जो इस बात का अनुभव करता है कि वो शुद्ध आत्मा ही मैं हूं, वो अपने आप शरीर और आत्मा में अंतर कर पाता है
और अपनी लाइफ में जो उसे करना चाहिए उसे बहुत अच्छे से समझ पाता है। इतनी बात अंतरात्मा के माध्यम से मुझे आपको बतानी थी। अंतरात्मा का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया? यस। ओ ग्रेट, हाँ। ग्रेट। अब हम चल रहे हैं इसको रियलाइज करने के स्टेप में। फाइन, इसके कुछ 3 नाम यहाँ दिए हुए हैं, ज्ञानी, सन्मति, सम्यक दृष्टि, इंटेलिजेंट, एनलाइटेंड एंड राइट परसेप्टर। ये कुछ नाम हैं जिससे हम एक सम्यक दृष्टि को पहचानते हैं। जैसे समय सार यदि आप पढ़ें कभी, तो आपको ये वर्ड ज्ञानी बहुत ज्यादा जगहों पर पढ़ने को मिलेगा। उससे आप समझ जाएंगे कि ये ज्ञानी मतलब सम्यक दृष्टि की बात हो रही है। चलिए, अब इसको हमने 3 पर्टिकुलर स्टेजेस में डिवाइड किया है। 3 स्टेजेस के नाम आपके सामने हैं, हाई, मीडियम एंड लो। हाई, मीडियम एंड लो में देखिए, लो में एक बिल्कुल ऐसे आदमी की फोटो दिखाई गई है। ये व्यक्ति कौन है? तो सॉरी, ये व्यक्ति कौन है? तो जरा आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए, ये हैं भाई साहब जो एक धार्मिक पुस्तक पढ़ रहे हैं जिसका नाम आत्मधर्म है। कहने का मतलब ये है, ये बिल्कुल वो सामान्य श्रावक है जो बिल्कुल सामान्य जिंदगी जीता है, और सामान्य जिंदगी जीते जीते वो इस बात को समझ जाता है कि हम हैं कौन, हमारा जीवन क्या है, और धीरे धीरे करके जो बदलाव आएंगे वो समय के साथ में आते जाएंगे। तो देखिए, सेकंड स्टेज में जो आपके सामने व्यक्ति है, ये व्यक्ति वो है जिसकी लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो गए। इसको हम कहते हैं व्रती श्रावक। क्या कहते हैं इसे हम? व्रती श्रावक। ग्रेट, इसे हम व्रती श्रावक। व्रती मतलब जिसने अणुव्रतों को अंगीकार किया है। अणुव्रतों के नाम मैंने कल आपको बताए थे। 5 पाप का विरोध जिसमें होता है उसको अणुव्रत कहते हैं। ठीक है, तो ये अणुव्रती जो होता है बेसिकली वो व्रती श्रावक कहलाता है। 5 पाप कौन कौन से हैं? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। हिंसा का मतलब आप जानते हैं, झूठ का भी मतलब आप जानते हैं, मतलब ये वर्ड्स आपके लिए बहुत कॉमन है। अब इन 5 का विरोधी देखिए, इन द ऑपोजिट ऑफ दीज 5 सिंस इज अहिंसा, सत्य, अचौर्य, परिग्रह, परिमाण और ब्रह्मचर्यानुव्रत। So these are basic 5 vratas which this person starts to follow in very small bits, but he starts to follow. धीरे धीरे करके वो बड़े होते जाते हैं। और जैसे आपने सुमत प्रकाश जी को देखा होगा, जैसे आपने रविंद्र जी को देखा होगा, जैसे आपने इन सब लोगों को देखा होगा, ये लोग उसके बड़े स्टेज पर हैं। तो वो स्टार्ट होता है छोटे स्टेज से, और धीरे धीरे करके भले ही वो कपड़े पहने की अवस्था हो, लेकिन वो ग्रेजुअली बड़े बड़े स्टेज तक जाता है। अब इस मध्यम अंतरात्मा में एक और चीज आती है, जरा देखिए ध्यान से हमारे दूसरे फिगर में। ये आपको एक फोटो दिखाई गई, आप बता सकते हैं ये फोटो कहां से ली है? कैन समबडी टेल मी वेयर दिस इज टेकन फ्रॉम? बाल बोध में पंच परमेष्टि नाम का चैप्टर है उसमें से। वेरी गुड, वेरी गुड। जो बाल बोध पाठमाला भाग 1 है, उसमें मंगलाचरण दिया हुआ है। मंगलाचरण मतलब नमोकार मंत्र का मंगलाचरण दिया हुआ है। उस मंगलाचरण में आचार्य परमेष्ठी में से ये फोटो ली है। तो मतलब ये जो आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये जितने भी व्यवहार में अपना काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे समझ लीजिए मध्यम अंतरात्मा के अंदर आते हैं। और फिर ये बिल्कुल उसके बियॉन्ड वाली स्टेज है, ये बिल्कुल प्योर साधना वाला स्टेट है। इस स्टेट में किसी से कोई बोलचाल नहीं होती है, किसी से कोई लेना देना नहीं होता है, सिर्फ आत्मा में लीन होते हैं और इतने गहरे 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 जाते हैं कि बस इसके एक स्टेप ऊपर वो परमात्मा बन जाते हैं। तो ये अंतरात्मा के 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहला जघन्य, दूसरा मीडियम मतलब फर्स्ट है लो, दूसरा है मीडियम और तीसरा है हाई। लो के अंदर बिल्कुल हमारे जैसे सामान्य लोग जो बिल्कुल जिंदगी में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं, जैसी सामान्य जिंदगी है, अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं और खुशी से रहते हैं, ऐसे लोग इस स्टेज में आते हैं।
दूसरा जो मीडियम है उसमें थोड़ा सा ऊपर स्टेट आता है, जिन्होंने बहुत सारी चीजों का त्याग कर दिया है, अणुव्रतों का पालन करते हैं, अष्टमी चतुर्दशी को एकासन रखते हैं या उपवास रखते हैं, ये उसके मीडियम स्टेज में आते हैं। या जितने भी हमारे मुनिराज हैं, वो जब भी चल रहे हैं, घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, ये सारे स्टेजेस करते हुए जो अपना काम कर रहे हैं, दीक्षा दे रहे हैं, दीक्षा ले रहे हैं, ये सब कुछ मध्यम अंतरात्मा, मीडियम इंट्रोवर्ट में आता है। और समझ लीजिए इसका जो हमारा लास्ट जो उत्तम अंतरात्मा का स्टेट है, वो उस साधना का स्टेट है जो साधना बिल्कुल परमात्मा बनाने वाली है, बिल्कुल परमात्मा से एक स्टेप नीचे। इस स्टेट में बिल्कुल किसी से कोई लेना देना नहीं होता है, आदमी अपने काम से मतलब रखता है, और काम से मतलब रखता है मतलब कोई भी व्यवहार में क्रिया नहीं होती, क्रिया से बिल्कुल मौन, मन से बिल्कुल मौन, वचन से बिल्कुल मौन, ऐसी अवस्था का नाम उत्तम अंतरात्मा है। So let's look at the definitions of these particular stages. Fine. So the first one is उत्तम अंतरात्मा। आप सबको स्क्रीन दिख रही है? यस। वो बार बार हाँ। पूछने में जरा अच्छा लगता है, आप लोगों की आवाज सुन लेता हूँ ना तो ऐसा लगता है सब सही चल रहा है। चलिए, so the उत्तम अंतरात्मा state is devoid of all external and internal possessions. Possessions मतलब परिग्रह, परिग्रह का मतलब आप सबको पता है आई गेस, जो भी आपकी आवश्यकता से ऊपर होता है उसे परिग्रह कहते हैं। तो ये आपकी लाइफ के हिसाब से होगा तो इसे कहेंगे परिग्रह परिमाण व्रत, और यदि मुनिराजों की अपेक्षा से होगा तो पीछी, कमंडल, शास्त्र, इनको छोड़ करके बाकी सारी चीजों को परिग्रह माना जाता है, क्योंकि वो परिग्रह को पूरी तरीके से नाश करके महाव्रती हो गए हैं। ठीक है, फिर एक और बहुत अच्छा उनका आइडेंटिफिकेशन है, इसे कहते हैं पैशनलेस मंक। पैशनलेस मंक मतलब वीतरागी भगवान, मतलब वीतरागी मुनिराज। ये स्टेट जो होती है इसमें कोई आचार्य नहीं होता, इस स्टेट में कोई समझ लीजिए मुनिराज वाली स्टेज है, इसमें कोई आचार्य नहीं होता, कोई उपाध्याय नहीं होता, कोई पद नहीं होते। ये ऐसा सिचुएशन होती है जब व्यक्ति बिल्कुल आत्मा में लीन रहता है और उसे किसी भी प्रकार की कषाय नहीं होती है। और फिर ये लास्ट इसका तरीका पहचानने का है, द वन हु इज अबाउट टू बी अ सुप्रीम सोल इज उत्तम अंतरात्मा। द वन हु इज ओनली वन स्टेप बिलो टू सुप्रीम सोल is that particular stage of Paramatma. Fine. Any questions? I'd like to have some questions. Any questions? Anybody? What do you mean by 12th scale of spiritual progress? Great. I'll just come to it. Any other question? Is it Gunasthan? Yes, it is Gunasthan. Yes, it is. So I think you know what is Gunasthan. That's great. Fine. Let's go back to the PPT and we'll talk about that now. So this is Uttam Antaratma. The last point says in the 12th scale of spiritual progress. So there are total 14 stages of spiritual progress. 13, 14 and beyond is called as Paramatma. 1, 2, 3 is called as Bahiratma, and in between 4th to 12th is called as Antaratma. Will somebody repeat it for me? सहीम जी। Yes. आप आवाज आ रही है आपको सहीम जी? हाँ जी। सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ थोड़ा सा। इस क्लास में 59 वाले जो भी छात्र आए होंगे, लिंक एक्सचेंज हुई है, तो मैं इस ग्रुप पे आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ, तो आप अपने जो 59 वाली ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। मतलब मुझे क्या करना होगा?
नहीं, बच्चों को, छात्रों को बताना था मुझे कि वो 59 वाले ग्रुप के आपके लिंक में आ गए हैं। यदि कोई आया हो तो मैं ग्रुप पे लिंक शेयर कर रहा हूँ, तो वो 59 वाले ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। स्वप्निल जी उनके अध्यापक हैं। Fine. So whosoever wants to shift, I mean, आप जो भी दूसरी क्लास के हो तो आप प्लीज उस क्लास में जा सकते हैं। चलिए, मैं ग्रुप पे लिंक शेयर कर देता हूँ भाई साहब। थैंक यू। ओके, थैंक यू, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। नो प्रॉब्लम। उत्तम अंतरात्मा के बारे में हम बात कर रहे हैं। उत्तम अंतरात्मा में अभी जो मैंने आपको 3 चीजें बताई थी, एक बार रिपीट करता हूँ, फिर आपसे किसी से पूछूंगा। बहिरात्मा में बेसिकली जो स्केल है, उस स्केल में 1 2 3 ये सब बहिरात्मा है। 4th to 12th ये अंतरात्मा है। 13 14 एंड बियॉन्ड ये परमात्मा है। somebody would like to repeat it for me please? Can I? Yes please संस्कार। जो 1 to 3 होती हैं, 1 2 and 3 वो बहिरात्मा होती हैं। Then Right. 4 to 12 it's अंतरात्मा, and beyond Yes. this 13 14 and beyond it's परमात्मा। Thank you very much. Is it clear everybody else? Yes, yes. Okay, great. So now you just frame that in your mind and leave 1 2 and 13 14 15. We are going to talk about 4 to 12. So amongst 4 to 12, the 12th stage is called as Uttam Antaratma or high introvert. Clear? The 12th, that means the highest stage of Antaratma is 12th scale of spiritual progress. Okay, next. Next is the lowest level of Antaratma we are talking about. This is basically the 4th stage. This is basically the 4th scale of spiritual progress. So only the 4th one comes in this. The name of the 4th progress is Avirat Samyak Drishti. Avirat Samyak Drishti. Avirat means who has not taken any vows, जिसने कोई प्रतिज्ञाएं, कोई भी व्रत नहीं लिए हैं। और सम्यक दृष्टि मतलब who knows the basic difference between soul and body, and he knows it, believes it and understands it. Are you getting it? Yes. Okay, who has the correct faith? My screen is getting a little problematic. Having the correct faith without any specific vows of conduct. Specific vows of conduct नहीं है, इसलिए अविरति है, and has correct faith, इसलिए सम्यक दृष्टि है, and hence we had talked about Jaghanya Antaratma. Let's move on with the last Antaratma, and that is the last topic of the class. Do I have something else? No. Okay, so the last topic is Madhyam Antaratma. What is Madhyam Antaratma? He is midway between the high and the low. So he is not 4th, he is neither 4th nor 12th. So what will be his range? What was his name? 5 to 11. Great. 5 to 11. 5 to 11 will be his particular grade. In that particular grade, he is called Madhyam Antaratma. It starts with the householders who have taken vows. So those householders like Grahasth, जैसे कि हम सभी हैं, he has also taken the vows, and other monks. So the 5th stage is of the vows who has taken of the householders who have taken vows, and 6th to 11th is the stage of other monks. Okay, so this is how we have understood the basic concept of Antaratma. I do not have particular images to show you what kind of a person he can be,
because I only have this much to share. You can have a look over here. Like this stage, we are basically talking about this particular stage. If you understand this particular stage, things will be, very simpler. So the first one is Jaghanya Antaratma, which is called low introvert. He lives life like us, understand things like us, is quite very sure of what he's doing of the life. Second stage is this stage. The fifth basic spiritual progress is of this person who has taken vows but is with clothes, and who is trying to come to the path of renouncing clothes. वो शरीर में जो कपड़े हैं उन सबका धीरे धीरे करके अपना परिग्रह कम करता है और अंत में जाकर के मुनि दीक्षा को धारण कर लेता है. So this is basically that fifth stage of spiritual progress, मतलब पांचवा गुणस्थान. And then from the 6th to 11th stage is this monkhood, जो मुनि अवस्था है, जिसको हम साधु अवस्था, आचार्य अवस्था, उपाध्याय अवस्था भी कहते हैं. This particular fifth stage is the medium antaratma, medium introvert. And the last stage is this. I only want you to, remember few words from this. If you remember few words, the subject content will be very simple for you. I'll just show you once again. The terminology says, Uttam Antaratma, you need to understand this word. Devoid of all possessions. Passionless monk. These two things will be sufficient. If somebody asks you what is Uttam Antaratma, so there are two things. One, who is devoid of all possessions. Second, who is passionless. Two things to summarize Uttam Antaratma. Okay, and the next one is Jaghanya Antaratma. So we have again, you can say only one thing is there. Two things you can say. The first one is without specific vows, but with correct faith. Two things. Correct faith, matlab samyak darshan, and without vows, bina pratigya, matlab avirati. So two things to remember in Jaghanya Antaratma also. And the last one is, and the last one is between both of these. That means between high and low, this particular stage, high and low, and with household vows. These are also people who have taken monkhood. So maybe only this much will be enough. Between high and low, this particular definition is enough. The ones who are in midway between high and low, जो उत्तम अंतरात्मा और जघन्य अंतरात्मा के बीच में आते हैं, उन्हें मध्यम अंतरात्मा कहते हैं. Is it clear, everybody? In case if you have any questions, I am about to have those questions. Go ahead. भैया vows मतलब? Vows मतलब नियम, जो संकल्प लेते हैं, जो व्रत लेते हैं, उसको हम कहते हैं. Okay. ठीक है? Okay, great. संयम जी, जय जिनेंद्र, आशय बोल रहे. जी बोलिए. ये जो आपने बताया विद वाउज हाउस होल्डर, उसका मतलब क्या होता है? वो थोड़ा मुझे क्लियर नहीं हो रहा है. फाइन. वाउज का मतलब होता है व्रत. तो जिस गृहस्थ व्यक्ति ने, मतलब घर में रहने वाले आदमी ने, कपड़ों वाले आदमी ने कुछ व्रतों को अंगीकार किया है, उसको कहते हैं विथ वाउज हाउस होल्डर. तो विथ वाउज हाउस होल्डर का सीधा मतलब क्या हुआ? जिसने 5 अणुव्रत अंगीकार किए हैं, उसको हम अणुव्रती श्रावक कहते हैं. आपने अणुव्रती श्रावक का नाम सुना है? जी हाँ, वो बेसिकली अणुव्रती का मतलब हुआ वाउज और श्रावक का मतलब हुआ हाउस होल्डर. तो विथ वाउज हाउस होल्डर. ओके, ठीक है. थैंक यू. एनी टाइम. Anybody else with any other questions?
भैया कल दोपहर की क्लास मिल जाएगी क्या? कल दोपहर की क्लास मैंने ग्रुप पर उसकी लिंक डाली हुई है। ओके। ग्रुप पर यूट्यूब की एक लिंक है, आप उससे उसकी क्लास ले सकते हैं। हाँ हेलो सर, यस सम्यक जी बताइए। this is Vitarag Vidyan 1 na? यस Hello. So actually I accidentally dropped here because this link was sent on BB3 ka some class, so I clicked on this and I came here, but I Okay. liked the class extremely, so can I do anything about it? we'll talk about in the chat. You just drop me a message, we'll talk about it. Okay. थैंक यू। चलिए प्रवीण जी, आज आपसे जरा मुझे थोड़े से काम है, आ जाइए सबके सामने। हाँ बोलिए। ये हुई ना बात। जो हमने पुरानी क्लासेस में पढ़ा है उसके हिसाब से मैं जरा कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, आप फटाफट आंसर करना। आर यू रेडी? ओके ओके। यस। फर्स्ट क्वेश्चन, टेल मी द टाइप्स ऑफ जीव। जीव के दो टाइप होते हैं, एक भव्य और दूसरे अभव्य। भव्य और अभव्य, ये दो प्रकार के जीव होते हैं। वंडरफुल। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ आत्मा? आत्मा के 3 स्टेजेस होते हैं, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और सुप्रीम। वंडरफुल। तीन प्रकार के, मतलब भागों में हमने आत्मा को डिवाइड किया है, 3 प्रोसेस में उसको डिवाइड किया है। बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। बहिरात्मा के लिए वर्ड एक्सट्रोवर्ट, अंतरात्मा के लिए इंट्रोवर्ट, और सुप्रीम मतलब उसके लिए हमने क्या वर्ड था? परमात्मा के लिए सुप्रीम। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज गोइंग टू बी अ ट्रिकी क्वेश्चन। हाँ, now tell me, how will you identify a abhavya, an abhavya? हम तो ये तो केवल ही गम्य सवाल Okay, है। great, हमें great. तो हमें तो ऐसा मानना है, क्योंकि हमें शास्त्र में इंटरेस्ट है, सच्चे देव गुरु शास्त्र में इंटरेस्ट है, तो हमें ऐसा ही मानना है कि हम भव्य जीव है। Wonderful, wonderful. We should see, there is a saying, we should never talk about poverty in its literal sense. कभी भी गरीबी के बारे में हमें उसके वास्तविक रूप से बात नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा ये कहना चाहिए, sharing is caring. So in the same way, I know what is bhavya and I do not know what is abhavya. You can figure out by yourself, needless to talk about it. चलिए, बहुत अच्छी बात है। भव्य के बारे में हम बात करें, भव्य का स्वरूप बताएं, और अभव्य के बारे में कुछ ना कहें तो अपने आप व्यक्ति को समझ आ जाएगा कि अभव्य कौन होता है। बहुत बढ़िया। That was a tricky question and you passed it completely. Thank you. Okay. अब मुझे सिर्फ एक सेंटेंस में बहिरात्मा का स्वरूप बता दीजिए। एक्सट्रोवर्ट, हु इज एन एक्सट्रोवर्ट? एक्सट्रोवर्ट वो होता है कि जो बॉडी को सोल मानता है और बॉडी के जन्म और मरण को अपना जन्म और मरण मानता है। Great. The definition has completely sufficed. This is wonderful. Okay. Next, what should I ask? Okay. In one line, can you define antaratma? That means introvert. इंट्रोवर्ट Yes. Use the same line that you have used for Bahiratma and just use a not in it. हाँ Negate it. बराबर। वो जो शरीर को अपना नहीं मानता और आत्मा को अपना मानता है। वेरी गुड, वेरी गुड। और फिर इसमें जो भी ऐड करना होगा वो अपन जो उसके 3 टाइप्स हैं उसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, बराबर। चलिए। नाउ somebody else I want thank you very much प्रवीण जी। कुणाल जी, आइए। चलिए, should I ask you some questions? चलिए, the first question that I'm asking you is, define low introvert. Low introvert means हाउसहोल्ड में रहते हुए जिसने वेद ज्ञान करना सीख लिया है, वो लो इंट्रोवर्ट कहलाता है। और जिसका तो और इसका गुणस्थान कौन सा होता है? इसका
4th। अरे बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए अब मुझे बताइए, उत्तम अंतरात्मा के दो तरीके से अपन ने बात की थी। उत्तम अंतरात्मा में वो दो कौन सी क्वालिटीज होती है? उत्तम अंतरात्मा मतलब जो सुप्रीम बनने ही वाला है, अबाउट टू गोइंग टू सुप्रीम, एंड जो डिस्टिंक्शन वाला मेरे ख्याल से अपन ने डेफिनेशन में पढ़ा था। देखिए मैं फिर से बोल देता हूँ, एक जो पैशंस से रहित है, यस यस, पैशनलेस है, और दूसरा जिसने सारे परिग्रह को, सारे पोसेशंस को छोड़ दिया है, उसको भी हम इंटरनल एक्सटर्नल पोजीशन। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। अब जरा मुझे आखिरी बता दीजिए, मध्यम अंतरात्मा, दैट मींस मीडियम इंट्रोवर्ट। मध्यम अंतरात्मा मतलब कि जो गृहस्थ रहते हुए जिन्होंने अनुभवों का अंगीकार किया और व्यक्ति हैं जो, और दूसरे जो साधु हैं जो धर्म प्रचार करते हैं वो। बहुत बढ़िया। इन शॉर्ट आप ऐसा कह सकते हो, जो उत्तम अंतरात्मा और जघन्य अंतरात्मा के बीच में होते हैं उनको मध्यम अंतरात्मा कह सकते हैं। डिटेल करना पड़ेगा तो अपन कह सकते हैं जिन हाउस होल्डर्स ने व्रत अंगीकार किए हैं, और जो मुनिराज हैं वो सबके सब समझ लीजिए मध्यम अंतरात्मा में आते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीबडी फॉर द क्लास। आपको कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, कुछ और दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। इस क्लास की रिकॉर्डिंग आपको अपलोड हो जाने के बाद मिल जाएगी। बताइए। हेलो, yeah, I've texted you here on chat actually. अरे यार, चलो फाइन, I'll copy it from here and then we'll talk. अब आपका नंबर भी तो मेरे पास नहीं होगा। सम्यक जी, आप मुझे YouTube व्हाट्सएप पे ही ये मैसेज कॉपी करके भेज दीजिए ना प्लीज। सर मेरे को भी नहीं पता सर, नंबर मैं इधर दे दूं नंबर? अच्छा फाइन, फाइन, आई विल गिव यू माय नंबर एंड माय नेम इज सयम। चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर द क्लास। क्या हुआ?